Hello, welcome to the platform of Chronicle IS. My name is Prakash Upadhyay. I am the faculty of Geography, Environment and Ecology and Disaster Management at Chronicle IS. Look at the paper. ये आपका मॉक पेपर है यूपीएससी का. तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट है. तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस जोग्राफी सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन. तो इसी मॉक टेस्ट में हम लोग जोग्राफी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. क्या कह रहा है? डिफाइन रॉक ग्लेशियर, डिस्कस द वेरियस फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक ग्लेशियर. जस्ट फाइंड आउट हियर इज अ in the question characteristics of rock glacier, discuss the various form and define the rock glacier. This is 1, this is 2 and this is 3. तो तीन चीज़ें डिस्कस करनी है. तो ज़रा हम देखते हैं भाई कि what is the demand and how we can approach this question. इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है and how we can approach this question. Approach this question. What is the demand of the question? How we can approach? The very simple formula or the very simple basics of approaching any question, just break the question. Break the question. Break the question. So here just one by one. In first step, question demands or question asks define rock glacier. In the second part, question wants discuss its various forms. And in third part, it wants to discuss its characteristics. तो इतनी सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी हैं. क्या कह रहा है? पहले डिफाइन करो व्हाट इज़ रॉक ग्लेशियर, देन वेरियस फॉर्म्स एंड देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड ऑल्सो वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर द वर्ड लिमिट. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर कि वर्ड लिमिट भी पूछ रहा है. ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू अप्रोच. बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस rock glacier, just I want to tell you कि what is glacier. What is glacier? For your kind information, what is glacier? What is glacier? तो glacier क्या है भाई? तो it is a group of ice, or it is made up of ice crystals, group of ice or ice crystals, through the process of accumulation and compaction. क्या कह रहे हैं? It is a group of ice made up of ice crystals, the process of accumulation and compaction and recrystallization. Here we can add recrystallization. Over a large area for a longer period of time. तो जस्ट हमने क्या बता दिया कि भाई इस क्वेश्चन में कि भाई ग्लेशियर ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. नाउ वी आर जस्ट मूव टुवर्ड्स द इंट्रो ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का इंट्रो कैसे लिख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के इंट्रो के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच? जस्ट डिफाइन व्हाट इज़ रॉक ग्लेशियर. व्हाट इज़ रॉक ग्लेशियर? क्या है रॉक ग्लेशियर?
तो कह रहा है रॉक ग्लेशियर it is a geomorphic landform. It is a geomorphic landform which formed by mixture of rock debris, ice crystals and mud. Through the process of accumulation, compaction under the compaction which moves down slopes under the impact of gravity. देखो क्या पता चला भाई, व्हाट इज रॉक ग्लेशियर? तो हमने देख लिया कि इट इज़ अ जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म विच फॉर्म्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस, आइस क्रिस्टल्स एंड मड. ठीक, फिर क्या कह रहा है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, कॉम्पैक्शन which moves down slope under the impact of gravity. Now we are just moving to the another part of this question. आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं? We just show some figures. Suppose that कि एग्जाम में नंबर लेना है तो हमें एक फिगर भी ऐसे बना देते हैं. जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि भाई रॉक ग्लेशियर्स है क्या. तो रॉक ग्लेशियर्स में दिस इज कॉल्ड द पीक ऑफ माउंटेन, and when this is the down slope, ये क्या है? this is called down slope. When the rock, mud and ice crystals are moving gradually under the impact of gravity, here suppose that this is the rock debris, and from another color this is called mud, and here in a very small point there is a glacier or the ice crystals which kept hidden, which cannot seen, which cannot or can't seen on the surface. देखो पता चल गया, which can't seen on the surface. तो ये this is called on the black point, this is called rock glaciers. Why it is called rock glacier? Because it is kept under the rock. तो ये हमें एक चीज़ पता चली. Now in the next part we are just going to deal in the main body, how we can deal it and how we can attract more marks. कैसे ज़्यादा marks attract कर सकते हैं? तो we are just simply do the things like forms. There are various forms, but here we have to understand the word limit, so we cannot discuss so many forms. Just we are going to discuss the active rock glaciers and relict or passive rock glacier. Passive rock glacier. What does it mean by active rock glacier and what does it mean by
पैसिव रॉक ग्लेशियर। एक्टिव रॉक ग्लेशियर और पैसिव रॉक ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, तो हम देखते हैं कि एक्टिव रॉक ग्लेशियर्स आर दोज रॉक ग्लेशियर्स विच कंटेन ice crystals. These rock glaciers contain ice and so present climatic behavior, present climatic behaviors क्या शो कर रहा है, these rock glaciers contain ice and shows the present climatic conditions or the behaviors. present climatic condition और behavior का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई एक्टिव रॉक ग्लेशियर्स पहले तो कंटेन कर रहे हैं आइस एंड सोज द प्रेजेंट क्लाइमेटिक बिहेवियर, कि अगर मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा होगा तो ये आइस जो है इससे स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन होगा और आइस एट द वेरी फास्टर रेट मेल्ट भी होते जाएंगे। ठीक, कह रहा है व्हाट इज इनएक्टिव रॉक ग्लेशियर। इनएक्टिव रॉक ग्लेशियर में क्या है भाई, इनएक्टिव रॉक ग्लेशियर्स आर those who talks or indicates past geological climatic conditions। पास्ट जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक कंडीशन को बता रहे हैं, दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द अनदर पार्ट वेयर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या डिस्कस करना है भाई, कैरेक्टर डिस्कस करना है। तो व्हेन वी आर मूविंग टू डिस्कस द कैरेक्टर, क्या डिस्कस करना है भाई, कैरेक्टर डिस्कस करना है। तो जस्ट वी आर यूजिंग अनदर सिनॉप्सिस, एक दूसरा सिनॉप्सिस यूज कर रहे हैं। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ रॉक ग्लेशियर्स। रॉक ग्लेशियर का क्या कैरेक्टर है, तो इसका पहले देखते हैं फॉर्मेशन की कंडीशन। तो कंडीशन ये कहाँ पर है इसका फॉर्मेशन, तो इट फॉर्म्स ऑन दी हायर एल्टीट्यूड और दी polar region or the region of permafrost or the region of permafrost, the area which is frozen under the soil which is frozen under the ice surface। तो कह रहा है एक तो इसका कंडीशन ये है, दूसरा इसका कैरेक्टर क्या है भाई, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट सीन, इट इज नॉट seen by the surface directly, it is not seen by the surface directly। दूसरा क्या है, it is a कैरेक्टर देखो, it is a 7%, 7 times, not percentage, it is 7 time, it have 7 time more water than glaciers। तो क्या पता चल रहा है, इट इज 7 टाइम मोर वाटर देन ग्लेशियर्स। इसके बाद हम इसके इस पे देखें
तो ये कहाँ फॉर्म हो रहा है? तो अगर इसको देखें तो इट फॉर्म्स इन कोल्ड एरियाज और द हाई पोलर रीजन्स. It indicates the environmental change. It indicates environmental change. ठीक ठीक. अभी और इसका क्या कैरेक्टर है कि विद द क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाएगा तो रॉक ग्लेशियर्स जो हैं उनका मेल्टिंग फास्टर होता जाएगा, विच इंडिकेट्स द क्लाइमेटिक चेंज. तो यहाँ इन्वायरमेंटल चेंज बता रहा है, कोल्ड एरिया में हो रहा है, नॉट सीन बाय द सरफेस डायरेक्टली. ठीक, इस तरह की चीज़ें हैं. क्लाइमेट सेंसिटिव है. सरफेस फीचर मैंने आपको बता दिया. मूवमेंट क्या है? इट मूव स्लोली. यहाँ पे एक मूवमेंट भी देख सकते हैं. इट मूव्स स्लोली. then glaciers. ठीक, तो दिस इज कॉल्ड, ये पूरा एक तरीके से रॉक ग्लेशियर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. तो हमने एक बार रॉक ग्लेशियर का कैरेक्टर देखा, एंड देन उससे पहले हम लोगों ने देखा उसका फॉर्मेशन, उससे पहले हमने उसके इंट्रो के बारे में देखा. ओके, तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स दी कि भाई इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए. तो नाउ वी आर जस्ट ड्राइंग द कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है इसका? तो कंक्लूजन क्या है? रॉक ग्लेशियर्स आर वेरी वेरी मच important for those areas which are facing periodic crisis of water and it is indicating the environmental health of particularly या particular region. So that we can understand the actual situation of glaciers. तो ये हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन का अप्रोच हो गया कि इसको कैसे लिखना था, इसके सिनॉप्सिस क्या था, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली. ठीक, तो जस्ट लुक एट दी सिनॉप्सिस, कैसे हमने इसे पेश किया, कैसे इसे प्रेजेंट किया और प्रेजेंटेबल कैसे बनाया. चलिए, थैंक यू. Look at the next question. Examine the geographical and urban planning factors that exacerbate heat wave condition in Indian cities. Suggest sustainable mitigation strategies. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय शहरों में लू की तीव्रता को बढ़ाने वाले भौगोलिक एवं नगरीय नियोजन संबंधी कारकों की विवेचना कीजिए, सतत समन रणनीतियाँ सुझाइए. तो कह रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच. तो कह रहा है जस्ट वी आर जस्ट ड्रॉ दी अप्रोच सिनॉप्सिस. पहले हम क्या करेंगे, अप्रोच सिनॉप्सिस क्वेश्चन का ड्रॉ करेंगे कि भाई इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या हो सकता है. अप्रोच क्या बताता है भाई कि भाई व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है भाई, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है. तो to analyze the demand or to analyze the nature of question, just we are
गोइंग टू ब्रेक डाउन दी क्वेश्चन. क्या करना है भाई? क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है. ब्रेक डाउन दी क्वेश्चन टू एसेस द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द क्वेश्चन. तो ब्रेक डाउन में फर्स्टली वी आर जस्ट फाइंड आउट द टेल वर्ड. हाउ मेनी टेल वर्ड्स, कितने टेल वर्ड्स क्वेश्चन में दिए हैं, पुछल्ले शब्द जो हैं वो, क्योंकि पुछल्ले शब्द या टेल वर्ड डिफाइन द नेचर एंड इट गिव्स द डायरेक्शन. डायरेक्शन भी देता है कि किस तरफ क्वेश्चन जा रहा है. ओके, तो पहला कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जामिन. तो पहला एक टेल वर्ड क्या है? एग्जामिन. ठीक, तो देखो पहला है एग्जामिन द ज्योग्राफिकल and urban planning factors that exacerbate heat wave condition in Indian cities. Suggest sustainable. Suggest is the another word. तो पहले क्या कह रहा है भाई? एग्जामिन करना है, फिर आपको सजेस्ट करना है. तो एक वर्ड है हमारे पास एग्जामिन. तो whenever we are using the word examine, it means हमें pros and cons दोनों बताना है. Then we also question wants some suggestion, suggest some mitigational strategy. कुछ mitigational, उसको रोकने के लिए कुछ mitigational strategy बताना है. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो now we are just moving to the primary keyword. Examine the heat wave. Primary keyword क्या है भाई इस क्वेश्चन का? What is the primary keyword of the question? Primary keyword of the question. Primary keyword क्या है? It क्वेश्चन डिमांड्स कि भाई आप हमें ये बताओ कि भाई व्हाट आर द जोग्राफिकल एंड अर्बन प्लानिंग फैक्टर्स विच आर यू कैन से दैट एक्सेलरेटिंग द अर्बन हीट वेव्स और लू इन इंडिया. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट आर द जोग्राफिकल प्लस अर्बन प्लानिंग. अर्बन प्लानिंग, what are the factors in urban planning and geographical factors are responsible which accelerate the heat wave. Okay, in the second part of the question demands मतलब secondary keyword क्या कह रहा है भाई? secondary keyword बोल रहा है कि suggest some mitigational strategy. mitigational strategy, मिटिगेशनल स्ट्रेटजीज. ठीक, तो अब क्या हुआ, हमारे पास एक पूरा एक आ गया सिनॉप्सिस कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है. तो नाउ बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और द अर्बन प्लानिंग फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट वेव, जस्ट आई वॉन्ट टू क्लियर इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म कि व्हाट इज हीट वेव. क्या है हीट वेव? तो कह रहा है हीट वेव it is a condition of unusual it is a condition of unusual नहीं, it is a condition of abnormal temperature. It is a condition of abnormal temperature, then it is a condition of abnormal temperature, then its normal temperature of any region. क्या कह रहा है कि भाई it is a condition of abnormal temperature, then its normal temperature in any region. तो कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि heat wave is something which talks about the maximization of temperature at particular region where it exceeds more than 4 to 5 degrees Celsius than its normal. ठीक, अगर मान लो severe heat wave है तो it is more than 6.5 degrees Celsius than its normal temperature. ठीक, अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि now we got it कि what is heat wave. Now we are just going to describe introduction. इसका introduction हम कैसे लिख सकते हैं भाई? तो कह रहा है we all are know that कि India
has witnessed unusual rising of temperature, unusual rising of temperature in several cities, in several cities like Delhi, Hyderabad, Banaras, कोलकाता। तो क्या कह रहे हैं, इंडिया हैज़ विटनेस अनयूजुअल राइजिंग ऑफ टेम्परेचर इन सेवरल सिटीज़ लाइक दिल्ली, हैदराबाद, बनारस, कोलकाता एटसेट्रा, वेयर in the month of March to June, temperature is higher than its normal temperature, which indicates not only climate change, it also talks about other responsible factors। ठीक, क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव हो रहा है, देयर आर ऑल्सो सर्टन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द increasing of heat wave intensity or the frequency of heat wave. Now we are just going to discuss what are the geographical factors which are responsible for the accelerating the heat waves. What are the geographical factors? Look at the settings, which area is facing. If you look at the setting of Indian states, जैसे हम इंडियन स्टेट की सेटिंग देख रहे हैं, then we are able to find that कि भाई जो इंडियन स्टेट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, देखो कैसे फिगर में आपको ऐड करना है एग्जाम में। ठीक, अब ये इंडियन स्टेट्स को हमें यहाँ देखना है। अब जब हम इंडियन स्टेट को देखेंगे तो जो भी हीट वेव फील कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने देखा दिल्ली को, तो दिल्ली क्या है भाई, दिल्ली को ले लेते हैं। दिल्ली के पास सबसे बड़ी बात क्या है, इट इज़ लैंड लॉक्ड, इट इज़ लैंड लॉक्ड। क्या है, इट इज़ लैंड लॉक्ड, दिल्ली इज लैंड लॉक्ड। तो लैंड लॉक्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, लैंड लॉक्ड होने की वजह से कह रहा है कि इसका जो लैंड लॉक है, और वी ऑल आर नो दैट कि भाई जो कॉन्टिनेंट जितने ज़्यादा होते हैं, जितना ज़्यादा इंसुलेशन मिलेगा वो इतना ज़्यादा हीटअप होंगे। तो पहली चीज़ पता चलेगी कॉन्टिनेंटैलिटी है बिकॉज ऑफ टू मच लैंड इज प्रेजेंट, टू मच लैंड इज प्रेजेंट, टू मच लैंड इज प्रेजेंट। तो हमें एक चीज देखनी है कि बहुत सारा लैंड
प्रेजेंटेड, या एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि प्रेजेंट, टू मच लैंड इज प्रेजेंट। अब टू मच लैंड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई हमको पता चल रहा है कि the cities like Delhi, the cities like Hyderabad, the cities, so many cities in Telangana, so many cities in UP, उन सब जगह पे लैंड लॉक्ड है सब, तो मतलब कॉन्टिनेंट ज़्यादा वार्मर हो रहा है, तो दैट्स वाई द टेम्परेचर इज unusually higher than its normal temperature. And then the second thing, if we look at the structure of India, then we are find out most of the cities which are facing heat wave, they are lies under the subtropical or subtropical and tropical region. Most of the Indian cities or most of India is lies under the tropical and subtropical region. इसका मतलब क्या हुआ कि usually India receives high amount of insolation. तो usually India receives maximum amount of or the high amount of temperature, maximum amount of insolation because it lies in the zone of tropics. तो दूसरी चीज़ हमको पता चली कि जोन ऑफ ट्रॉपिक्स में आ रहा है इस वजह से। अब तीसरी चीज़ क्या है, वी लुक एट द टोपोग्राफी। तो फर्स्ट फैक्टर लैंड लॉक था, दूसरा हो गया सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल, एंड थर्ड वन इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी तो कह रहा है कि भाई टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि उस सिटी का टोपोग्राफी कैसा है। मतलब सिटीज़ लाइक लोकेटेड इन वैली, तो अगर मान लो कोई cities like या cities located in valley like देहरादून, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो देहरादून में एयर प्रेशर जो है वो हाई है, हाई एयर प्रेशर है। अब हाई एयर प्रेशर का मतलब है एयर सबसाइड कर जा रही है, एयर इवैक्यूएट नहीं हो पा रही, निकल नहीं पा रही। तो जब एयर नहीं निकल पाएगी तो वहाँ पर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ डेंसिटी, बिकॉज ऑफ द प्लानिंग ऑफ दैट एरिया, वहाँ टेम्परेचर जो है हमेशा बना रह जाएगा, ठीक, ट्रैप्ड हीट हो जाएगा, ठीक। तो टोपोग्राफी की वजह से द सिटीज फेसिंग ट्रैप हीट। ओके, नाउ इन द अनदर पार्ट, इसी में एक और हम लोग जोड़ लेते हैं, ड्राई एयर। एयर कैसा है, ड्राई एयर एंड सेमी ड्राई भी है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ड्राई भी है और सेमी ड्राई है। इसका मतलब क्या है, ड्राई और सेमी ड्राई का मतलब क्या है, हम ये देखते हैं कि हॉट एंड ड्राई विंड्स पर्टिकुलरली इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द समर एम्पलीफाइज, क्या कर रहे हैं, हॉट एंड ड्राई है एयर विच एम्पलीफाइज द हीट वेव्स। तो ये भी हमको पता चल रहा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, कह रहा व्हाट आर दी अर्बन प्लानिंग फैक्टर, क्या अर्बन प्लानिंग के फैक्टर्स हैं। तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द अर्बन प्लानिंग फैक्टर्स। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दी अर्बन प्लानिंग फैक्टर। देखो मैं कई सारा सिनॉप्सिस बना रहा हूँ। तो पहले देखेंगे अर्बन मॉर्फोलॉजी, अर्बन मॉर्फोलॉजी। तो कह रहा है बिकॉज ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी वी ऑल आर नो दैट कि जब भी कोई सिटी देयर इज अ क्रिएशन ऑफ अर्बनाइजेशन, जहाँ पर भी क्रिएशन हो रहा है अर्बनाइजेशन का, वी जस्ट इग्नोर दी urban setting and unregulated urban sprawl। अनरेगुलेटेड अर्बन स्प्रॉल है, मतलब एक्सपेंशन जो रहा है अर्बनाइजेशन का अनरेगुलेटेड है। इट विल, यू कैन से दैट क्रिएट, इट विल ट्रैप द एयर बिकॉज अनसाइंटिफिक और अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन हो गया तो एयर पास नहीं हो पाती है, ठीक।
दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि अनरेगुलेटेड अर्बन एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अर्बन हीट आइलैंड्स। मोस्ट ऑफ द cities are facing urban heat island because of too much concretization ऑफ मटेरियल। कॉन्क्रीटाइजेशन खूब सारा हो गया है। अब कॉन्क्रीटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ टू मच अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द एरियाज ऑफ वेजिटेशन, ग्रीन वेजिटेशन का एरिया कम हो रहा है। दूसरा हम क्या देखते हैं, हाई एनर्जी कंजम्पशन है, तो हाई एनर्जी कंजम्पशन इज ऑल्सो, तो हियर इज हाई एनर्जी कंजम्पशन। ठीक, ये भी हमको देखना है। फिर क्या कह रहा है भाई, तीसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट चीज़ हम जो देख सकते हैं वो है पुअर हाउसिंग डिज़ाइन। तो थर्ड वन इज पुअर हाउसिंग डिज़ाइन। पुअर हाउसिंग डिज़ाइन है। पुअर हाउसिंग डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ भाई, हम ये देख रहे हैं कि पुअर हाउसिंग डिज़ाइन है, तो इसमें हमको ये पता चल रहा है कि जो हाउस है उसके पुअर हाउसिंग डिज़ाइन मतलब उसका एयर वेंटिलेशन कुछ नहीं है, उसमें वेंटिलेशन की किसी चीज़ पर बात नहीं हो रहा है। उसमें हमने नहीं देखा कि किस एरिया में दरवाज़ा होना चाहिए, किस एरिया में विंडो होना चाहिए, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, डेंस हाउसिंग प्लानिंग है। डेंस हाउसिंग प्लानिंग, तो विच कैन ट्रैप द हीट। क्या कर रहा है, विच कैन ट्रैप द हीट, ट्रैप कर ले रहा है हीट को वेंटिलेशन का टाइम ही नहीं है, हीट पास ही नहीं हो पा रहा, तो जब हीट पास नहीं होगा तो हीट ट्रैप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या देखते हैं, हीट एब्जॉर्बेंट बिल्डिंग मटेरियल्स, लार्ज या और ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज ऑफ heat absorbent materials। देखो तो क्या हुआ, यूज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जैसे एसफॉल्ट है और उसके साथ साथ डार्कर कलर टू शो द यू कैन से दैट टू फॉर द अट्रैक्टिवनेस ऑफ बिल्डिंग के अट्रैक्टिवनेस के लिए लोग मल्टीपल कलर यूज कर रहे हैं विच हैव वेरी लेस एल्बिडो, तो इट कैन ऑल्सो यू कैन से दैट कि ट्रैप द हीट को ट्रैप कर ले रहा है। ठीक, इंडोर हीटिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम इतना ज़्यादा असफाल्ट यूज़ कर रहे हैं, एंड द मैटर्स विच वी हैव यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग्स दे आर हीट अब्जॉर्वर। ओके, नाउ और क्या हो सकता है, वी आर जस्ट इग्नोरिंग, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिख सकते हैं, वी आर जस्ट इग्नोरिंग दी लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस। लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके लिए सजेशन देना है, क्या सजेस्ट किया जाए कि भाई जिससे अर्बन हीटलैंड या जो लू है उसका वो ज़्यादा हीट वेव्स का इंसिडेंट ना बढ़े। तो सबसे पहले क्या करना है, अर्बन ग्रीनिंग एंड नेचर बेस्ड सोल्यूशन। तो वी आर जस्ट सजेस्टिंग फर्स्ट की अर्बन ग्रीनिंग and focusing on nature based solution। और क्या है, to stop
immediate cancellation या immediate cancellation नहीं, immediate work on geographic प्लानिंग करना है, इमीडिएट जोग्राफिक प्लानिंग करना है कि भाई एयर वेंटिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर को देखना चाहिए। थर्ड क्या कर सकते हैं, फोकसिंग एंड अवॉइडिंग दी मटेरियल्स, फोकस भी करना है, अवॉइड भी करना है, विच ट्रैप्स हीट। क्या करना है नेक्स्ट, स्टॉप अनरेगुलेटेड अर्बन स्प्रॉल, अनरेगुलेटेड अर्बन स्प्रॉल को भी रोकना है। क्या करना है, वी आर जस्ट प्लानिंग क्लाइमेट सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। वी आर जस्ट क्लाइमेट सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें हम ग्रीन बेल्ट का भी ध्यान रखें, इकोसिस्टम का भी ध्यान रखें, एयर वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें, मतलब ग्रीन बेल्ट्स हो, वेजिटेशन भी हो, मतलब एक तरीके से वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इनोवेशन कर सकते हैं, जैसे वी हैव टू यूज लाइटर कलर इन द बिल्डिंग्स, लाइटर कलर्स इन द बिल्डिंग। क्या है, हाउसिंग इंजीनियर्स, द हाउस मेड बाय द हाउसिंग इंजीनियर्स, जो वेंटिलेशन का ध्यान रखें, तो हाउसिंग इंजीनियर्स का भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग एंड हीट एक्शन प्लान, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग अर्ली वार्निंग एंड हीट एक्शन प्लान। अर्ली, वी आर जस्ट प्लानिंग अर्ली हीट एक्शन प्लान, अर्ली हीट एक्शन प्लान हमको तैयार करना है। एंड वी हैव टू यूज सम cooling, you can say that the mechanism, we have to prepare some cooling mechanism, कूलिंग के लिए भी कुछ मैकेनिज्म तैयार करना होगा। जैसे हैदराबाद ने रूफ गार्डनिंग किया है, ठीक, और बताया है कि टू अवॉइड द कलर्स हु आर डेंसर एंड डार्कर विच हैव वेरी लेस एल्बिडो, तो वो भी देखना है। प्लस क्या करना है, कम्युनिटी एंड पॉलिसी एंगेजमेंट भी करना है, तो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है, पब्लिक अवेयरनेस, to increase the public awareness in context or in regarding the urban heating। तो ये एक क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर हुआ। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 टेल्स, द पॉपुलेशन डिविडेंड इन इंडिया विल रिमेन थ्योरेटिकल टिल आवर मैन पावर बिकम्स मोर एजुकेटेड, अवेयर एंड क्रिएटिव। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक और सृजनशील नहीं हो जाती। चर्चा कीजिए, मतलब डिस्कस कीजिए, ठीक। तो कह रहा है क्वेश्चन, द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेग एंड डायनेमिक। सो बिफोर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, जस्ट फर्स्टली वी आर ड्राइंग our approach, कि what is the approach of the question, क्या approach होना चाहिए, what should be the correct approach to assess and write this question। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या जानना है इस क्वेश्चन में, what we can do first, क्या कर सकते हैं सबसे पहले, we are just finding out the tail word, because tail words give us the direction about the nature of question।
तो in this question the tail word of the question is discuss. Discuss, it means whatever the knowledge regarding the topic you have to just deliver in a proper manner. Okay, now in this question the question demands the understanding of population dividend. Question demand the understanding of population dividend. Look at the one more time the question. The population dividend in India will remain theoretical. तो कह रहा है कि you have to just define why population dividend remains unrealistic, or theoretical. Unrealistic. Why? What are the problem? Why the population dividend is unrealistic or untheoretical without the, look at the question. कह रहा है remain theoretical till our man power become more educated, aware and creative. मतलब कह रहा है कि भाई till, तो कह रहा है नेक्स्ट पार्ट किस पर चर्चा करना है कि भाई हमारा जो मैन पावर है, मैन पावर जो है वो एजुकेटेड हो, मोर अवेयर हो, इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन को करना. मतलब इसका मतलब ये है चैलेंजेस इंडिया फेसिंग इन रियलाइजिंग इट्स डिविडेंड. क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है इसके डिविडेंड को रियलाइज करने के लिए. फिर क्या करना है, लिंक यू कैन से दैट लिंक टू नीड फॉर मेकिंग डिविडेंड. जो डिविडेंड है मैन पावर का, पॉपुलेशन डिविडेंड है, उसको लिंक करना पड़ेगा कि भाई कैसे पॉपुलेशन डिविडेंड का रियल प्रॉफिट लिया जाए. समझ पा रहे हैं. तो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन थिंग, जस्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज पॉपुलेशन डिविडेंड. क्या है पॉपुलेशन डिविडेंड, व्हाट इज population dividend. What is population dividend? What is population dividend? क्या है population dividend? तो कह रहा है population dividend according to United Nation Population Fund. According to the United Nations Population Fund, it shows the economic potential. It shows the economic potential of age structure. Age structure, what does it means by कि how much percentage of working age group, working age group. What is the working age group according to the population dividend? It is between 15 to 64 years. When the population of working age, देखो, when the population of working age is more than its non-working population. What does it means by non-working population? क्या मतलब होता है non-working population का? तो non-working population it means earlier child it means 0 to 14 years, and old age people above the 65 years.
तो दिस इज कॉल्ड कि डेमोग्राफिक डिविडेंड. व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड is the population ratio where the working population is more than its non-working population. And now, according to the latest data of 2020, India's mean India's median age is just 28 years. It is more than, it is, you can say that less than, not more than, it is less than US and China, USA and China, and it is less than Western Europe में क्या है? It is 41, and you can say that जापान में 44 चल रहा है. तो ये भी हमें एक डेटा देखना है. ठीक, तो कह रहा है कि अब हम लोग जा रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन कि भाई इसका इंट्रो कैसे लिखा जा सकता है, व्हाट आर दी बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द क्वेश्चन. तो हम क्या कर सकते हैं कि इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल फॉर अ लार्ज स्केल वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज़ बीन ऑफन सेलिब्रेटेड. क्या कह रहे हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? कह रहा है कि इंडिया इज अ कंट्री which is passing through the period of great optimization where it takes great economic growth advancement through its population, but due to lack of education, skill and awareness, India's population dividend become burden on the become burden, not on the, became burden. India's population dividend became burden despite of India is passing over the great population dividend. Okay, why it is act as a burden? What are the reason behind it? क्या reason है इसके burden के? तो now we are just going to discuss the main body. Look at the question. Again, I just want to show you कि question क्या कह रहा है. The population dividend will remain theoretical till manpower become more educated. कह रहा है कि ये theoretical ही रह जाएगा अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे. तो इस पर काम क्या करना है? कह रहा है वाई पॉपुलेशन डिविडेंड रिमेन्स थ्योरेटिकल. वाई. तो अब कह रहा है कि यहाँ पर फिर हम एक सिनॉप्सिस यूज करेंगे. कह रहा है वाई इंडियाज पॉपुलेशन रिमेन्स थ्योरेटिकल. Why
India's population remains theoretical. क्यों theoretical रह जाएगा भाई? What are the reason? कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन डिविडेंड जो है रिमेन्स थ्योरेटिकल? पहला क्या है? एजुकेशनल डेफिसिट. एडुकेशनल deficit. What does it means by educational deficit? Educational deficit, it means despite the number of registration and the number of nomination has been increased, but the quality of education, despite the number of admissions increase, but the quality of students at their worse. Why? According to the ASER report. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट असर रिपोर्ट क्या है भाई? तो कह रहा है असर रिपोर्ट कह रही है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन द क्लास ऑफ 5 दे आर अनेबल टू रीड क्लास 2 सब्जेक्ट सिलेबस. अनेबल टू रीड मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट इन द स्टेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो इसका मतलब क्या कह रहा है? इट शोज दी कि हाउ मच द standard goes on decreasing in context of number of admissions. तो हमने ये देख लिया. नेक्स्ट क्या है? स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट गैप. सेकेंड क्या कह सकते हैं? स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट गैप. द सेकेंड वन इज स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट गैप. देयर इज अ बिग गैप बिटवीन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट गैप. हम क्या देख रहे हैं? देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल बट द अमाउंट ऑफ जॉब विच हैज़ बीन अप्रोप्रिएट फॉर द स्किलफुल मैन इज नॉट अवेलेबल. द गैप इज मोर. तो इससे हमें क्या पता चला? कि ओनली 20% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब. तो कह रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली 20% ऑफ India's population is skilled, formally skilled, and they have job according to their skill. ये है. और क्या है? lack of awareness. तो थर्ड क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? lack of awareness. just lack of awareness. lack of awareness. what does it means by lack of awareness? lack of awareness का मतलब क्या होता है? the proportion, or you can say that the digital literacy and low financial awareness. यहाँ पर क्या है कि lack of awareness का मतलब है कि the job which has been available in the world, it demands digital literacy. तो क्या कह रहे हैं? digital literacy is very low, despite of India is the country which have highest population dividend. ठीक. तो इसके बाद हम क्या कह रहे हैं? absence of creativity and innovative culture. absence of क्या है? absence of creativity and innovation. Most of the population has been go through with their syllabus according to their skill, but the nature of syllabus is too old and the world is not demanding that, because our education system is not providing the creativity and innovation. They are more focusing on the traditional
एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। और क्या है भाई, द पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ और द न्यूट्रिशनल गैप, पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हमारे पास है ना। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, दोनों है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वी जस्ट यूज हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ भी हम एक यूज कर सकते थे, पर जस्ट आई वांट टू राइट समवेयर एल्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई unemployment, high unemployment and under unemployment। इसका मतलब क्या है कि द जॉब विच इज़ अवेलेबल, तो क्या है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि कह रहा है कि जिस तरह का स्किल है उस तरह का जॉब अवेलेबल नहीं है। दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि जितना आपके पास स्किल है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्किल जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो कह रहा है इन सब वजहों से क्या कह रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डिविडेंड है इट्स रिमेन्स थ्योरेटिकल। तो अब कह रहा है कि व्हाट वी कैन डू फॉर चेंजिंग पॉपुलेशन डिविडेंड इनटू रियलिस्टिक मैनर, मैन पावर में ऐसा क्या करें भाई हम लोग कि वो जो पॉपुलेशन डिविडेंड है वो रियलिस्टिक लगे, ठीक। तो कह रहा है कि व्हाट वी कैन डू, तो पहला क्या कर सकते हैं, फोकसिंग ऑन क्वालिटी एडुकेशन, फोकसिंग ऑन क्वालिटी एडुकेशन ओवर quantity, over quantity. What does it means by focusing on quality education, not quantity? Quantity नहीं देखना है, quality देखना है। providing education regarding current demand क्या है, the students are aware with artificial intelligence, they have idea of robotics, nano biotechnology। तो जो सिलेबस का हायरार्की है वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पर नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पे होगा तो दे फेस डिफिकल्टी इन जॉब में डिफिकल्टी होगा। और क्या होना चाहिए, दूसरा फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन रिच डाइट, ठीक। और क्या होना चाहिए, फोकसिंग ऑन अवेयरनेस होना चाहिए व्हाट्स गोइंग ऑन दी वर्ल्ड, क्या चल रहा है वर्ल्ड में, किस तरह की डिमांड है, किस तरह के स्किल की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। और क्या है, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव माइंडसेट, promoting creative and innovative mindset। मतलब क्या है, peoples are not forcing to read and peoples are not forced to read the traditional subject। प्रमोट करो क्या, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन
माइंडसेट, ताकि जॉब क्रिएशन कर पाएँ, कुछ नया बना पाएँ। रादर पेरेंट्स को क्या चाहिए भाई, पेरेंट्स के अंदर भी स्किल होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि दे आर नॉट फोर्सिंग कि भाई डॉक्टर बनो, दे आर नॉट फोर्सिंग कि भाई सिविल सर्वेंट बनो, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एंड दैट आफ्टर दिस हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर दिस कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं, कह रहा है इंडियाज यूथ, इंडियाज यूथ, इंडियाज यूथ can only profitable when it focusing on quality education, quality education, innovation, and if they have less burden of result over इनोवेशन। लेस बर्डन होना चाहिए, अगर कोई इनोवेशन कर रहा है तो इनोवेशन इज मोर प्रायोरिटाइज ओवर द रिजल्ट। कि हो सकता है उस स्टूडेंट का, उस वर्किंग एज पॉपुलेशन का रिजल्ट अच्छा ना आए, पर उस पर फोकस नहीं करना है, उसके इनोवेशन पर उसको प्रमोट करना है। एंड इंडियाज यूथ कैन बी द स्ट्रेंथ और बिगेस्ट चैलेंज, बोथ हो सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट ऑटोमेटिक हैपन, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड it is not happen automatic, it needs good quality of education or education over एडमिशन। ठीक, तो हमको पता चल गया कि भाई इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था, इसका राइट अप्रोच क्या हुआ और कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते थे। चले, विश यू ऑल द बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जस्ट रीड आउट फर्स्ट। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाउ दे शेप लोकल एंड ग्लोबल वेदर कंडीशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ भाई वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए, साथ ही स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार स्थानीय तथा वैश्विक स्तर की मौसमी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। तो लुक एट द क्वेश्चन एंड जस्ट वी आर गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन। क्या करना है पहले, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द अप्रोच ऑफ this question. What is the best way to approach? क्या बेस्ट होना चाहिए? तो क्या कह रहा था भाई, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि डिफाइन दी फैक्टर्स। तो सबसे पहले डिस्कस दी फैक्टर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्कस दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले डिस्कस करो कि कौन से फैक्टर्स हैं विच affect the atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर सेकेंड पार्ट में क्या करना है, तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ दे शेप लोकल एंड ग्लोबल वेदर। तो सेकेंड पार्ट में बताना है कि हाउ दे शेप लोकल एंड ग्लोबल वेदर सिस्टम, ग्लोबल वेदर सिस्टम। कह रहा ये है,
तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बताना है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़े में बताएंगे, फिर उसके साथ बहुत क्रंची और क्रिस्पी फॉर्म में शॉर्ट में बताएंगे कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड देन वी जस्ट मूव करेंगे, मूव इन कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड देन वी हैव टू जस्ट एक्सप्लेन what are the how they are shaping and controlling and determining the local and global weather events. Okay, so just without wasting of any time we are just come to the point. हम अपने मुद्दे पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि what is atmospheric pressure. We are just going to discuss what is atmospheric pressure. कह रहा है what is atmospheric pressure, क्या है atmospheric pressure. तो कह रहा है the weight of all the atmospheric layer exert on the per unit area of earth surface is called atmospheric pressure. कह रहा है atmospheric pressure क्या है, तो कह रहा है weight of all the air column on per unit area on the earth surface is called atmospheric pressure, and this atmospheric pressure is always measured on sea level. ठीक, कह रहा है always measured in sea level. Why? Because sea level have no topographical elevation is present. On the sea level there is a no topographical elevation is present, and that's why the sea level is area where you can say that the almost the accurate amount of air pressure has been measured. अब कह रहे हैं कि we are just moving to the second part. Atmospheric pressure varies from area to area, and it's also varying from season to season, and it measures in millibar. ये भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ. It measures in millibar, and at the sea level it is 1013.5 millibar प्रेशर होता है at the sea level. ठीक, at the sea level. ठीक, तो इसमें से छोटा सा इंट्रो है, आप छोटे से इंट्रो में बता सकते हो वेट ऑफ ऑल द एटमॉस्फेरिक लेयर एक्सर्ट ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया. ठीक, एंड इट मेजर्ड इन मिलीबार. और ये थोड़ा सा लिख दिया. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ दूसरा करना चाहते हैं, तो हम एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फिगर बना करके उसको बता भी सकते हैं. ठीक, देखो क्या फिगर है भाई. यहाँ पर हमने एक माउंटेन ले लिया. ठीक, इस माउंटेन को लेने के बाद यहाँ पे देखो एक माउंटेनियस स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं. जस्ट सी, यहाँ पर हमने एक माउंटेनियस स्ट्रक्चर ले लिया. इसके बाद हमने यहाँ पे एक हिल स्ट्रक्चर ले लिया. इसके बाद हमने यहाँ पे एक प्लेटू स्ट्रक्चर ले लिया. फिर कह रहा है इसके बाद हमने यहाँ पे एक लेक का स्ट्रक्चर ले लिया. ये लेक ले लिया हमने. फिर यहाँ पे हमने सॉयल ले ली, तो इधर हमने सॉयल ले लिया. और ये जो सी लेवल है इससे नीचे हमने लिया ओशन, तो ये ओशन है. दिस इज कॉल्ड माउंटेन, दिस इज कॉल्ड हिल, दिस इज कॉल्ड प्लेटू, दिस इज कॉल्ड लेक्स, दिस इज कॉल्ड सॉयल और द सॉयल सरफेस, और दिस इज कॉल्ड सी लेवल और द ओशन. तो यहाँ पर हम बता भी सकते हैं कि देखो, एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो बाउंड्री है इट इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रोफोस्फीयर. यहाँ पे हम एक ट्रोफोस्फीयर ले लेते हैं, ट्रोफोस्फीयर. ठीक,
तो एक्सोस्फीयर से ट्रोपोस्फीयर का वेट यहाँ पे देखो इस कॉलम में, इस कॉलम में वेट देखो, ठीक। एग्जामिनर को आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इस कॉलम में वेट देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे वेट देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे वेट देखिए। वेट लगातार हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है और कह रहा है सी लेवल पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक वेट है। तो ये भी आप एग्जाम में ऐसे बनाकर बता सकते हैं। ओके, नाउ वी आर जस्ट कम टू द पॉइंट कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द एयर प्रेशर, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो नाउ वी आर जस्ट going to discuss what are the factors which influences एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। temperature we all are know that in the lower latitude the amount of insolation is higher, and in the you can say that in the higher latitudes the amount of insolation goes down। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 0 to 45 डिग्री more insolation in general, thick, and from 45 degree north as well as south to 90 degree north as well as south it have less temperature। और थोड़ा बनाना हो तो हम ये कह सकते हैं tropical region receives more temperature because the sun rays are vertical, perpendicular and straight, and that is why that area receives more insolation, ठीक। तो इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन है लो प्रेशर, बिकॉज व्हेन द एयर डायरेक्टली फॉल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस द अर्थ गेट्स हीटेड, द एयर विच लाइज ओवर द अर्थ सरफेस आल्सो गेट्स हीटेड एंड राइज अप। एयर का नेचर ही होता है कि व्हेन द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड द एयर विच लाइज ओवर द अर्थ सरफेस आल्सो गेट्स हीटेड। तो क्या होगा, व्हेन द एयर गेट्स हीटेड इसमें एनर्जी पार्टिकल्स अगेन दे राइज अप अपवर्ड, राइजिंग अपवर्ड करने लगते हैं, ठीक। दूसरा क्या कह सकते हैं हम, एल्टीट्यूड। द सेकेंड वन इज अ एल्टीट्यूड। we all are know that with increasing altitude temperature will drop down, with increasing altitude temperature will drop down at the rate of 1000 meter to 6.5 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा हाइट बढ़ रहा है फ्रॉम द अर्थ सरफेस टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम होता जा रहा है, ठीक ना। और ये भी हम जानते हैं कि एयर इज़ डेंसर नियर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फैक्टर, और जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक। तो जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा एयर डेंसर कहाँ होगी, नियर द सरफेस। थर्ड वन क्या हो सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर, तो वाटर वेपर के साथ क्या है, वी ऑल आर नो दैट कि वाटर वेपर जो है क्या है, इट इज़ नॉट अ ड्राई गैस, इट इज़ अ वेरिएबल गैस, एंड द वेट ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन all the dry gases which present in the atmosphere। जो भी ड्राई गैसेज हैं उनसे इसका वेट कम होता है, एंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर वेपर इज 18। नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट क्या है, इट इज़ 28, एंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, एंड इन ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ 40। आर्गन का क्या है 44, ठीक। तो हम देखते हैं कि सबसे हल्की है। तो जब भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेज द प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक। तो if the amount of
amount of water vapor, if the amount of water vapor increases, if the amount of water vapor increases, pressure will decrease. ठीक, जहाँ पे भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बढ़ेगा वहाँ प्रेशर कम होता जाएगा. ठीक, तो कह रहा है कि अब तो ये क्या देखा, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. फिर क्या कह रहा है, अर्थ रोटेशन. वी ऑल आर नो दैट कि अर्थ रोटेशन इज अनदर फैक्टर. अर्थ रोटेशन और दी कोरियोलिस फोर्स भी कह सकते हैं. वी ऑल आर नो दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज हायर एट द इक्वेटर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज हायर एट द पोलर रीजन. तो हमको क्या पता चल रहा है कि अर्थ रोटेशन कॉज द डिफ्लेक्शन इन द wind direction and the centrifugal force is more, and because of this reason the tendency of air rising at the equator and there is a tendency of sinking at the pole. तो ये भी अर्थ रोटेशन भी हम कह सकते हैं. और क्या कह रहे हैं, क्या हो सकता है, लैटिट्यूड और इंसोलेशन. लैटिट्यूड भी कह सकते हैं. लैटिट्यूड तो हमने एक बार डिस्कस किया है यहाँ पे, टेम्परेचर भी, फिर भी लैटिट्यूड भी आप कह सकते हैं. लैटिट्यूड एंड इंसोलेशन, इसको भी हम एक कंसीडर कर सकते हैं, विच वी हैव डन. और क्या कर सकते हैं, टोपोग्राफी. ठीक, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन ऑल्सो ऐड टोपोग्राफी. टोपोग्राफी, वी ऑल आर नो दैट कि भाई टोपोग्राफी भी जो है ना, जैसे माउंटेन है. ठीक, तो यहाँ मान लो टोपोग्राफी है, तो टोपोग्राफी क्या करता है, जैसे मान लो माउंटेन ले लो, इट विल ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक, नेचर ऑफ द सरफेस. द टोपोग्राफी क्या करता है, ऑब्स्ट्रैक्ट करता है विंड को, ठीक, एयर फ्लो को. ठीक, तो जैसे मान लो कहीं पर कोई माउंटेन है, सपोज दैट यहाँ पे कोई माउंटेन है, तो बिकॉज व्हेन द एयर मूव्स, बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ माउंटेन, एयर लिफ्ट्स. तो यहाँ पर जैसे एयर लिफ्ट होगा विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन. तो यहाँ पे हाई प्रेशर भी बन सकता है. तो देखो टोपोग्राफी जो है वो एयर को, एयर के डायरेक्शन को, उसके नेचर को इन्फ्लुएंस कर रही है. ठीक, तो कह रहा है टोपोग्राफी भी हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी भी डिपेंड करता है कि इफ़ देयर इज़ अ मोर लैंड, अगर कहीं पर ज़्यादा लैंड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, ये भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी. द मोर लैंड इज, तो हम क्या देखते हैं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड. जो स्पेसिफिक हीट है वाटर का, इट इज मोर एज कंपेयर टू लैंड, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इफ in the northern hemisphere the land body is more and that is why it heats faster. तो जहाँ पर लैंड ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वहाँ पर जो एयर प्रेशर है या द वेलोसिटी ऑफ एयर विल नेवर हाई. वाई? बिकॉज लैंड है, मतलब टोपोग्राफी है, बहुत सारा लैंड है, तो उसके फ्रिक्शन होता है एंड द वेलोसिटी ऑफ एयर गोज डाउन. एयर प्रेशर भी कम होगा क्योंकि लैंड बहुत तेज़ी से वार्मर हो जाता है, तो इट डेवलप्स लो प्रेशर. तो लैंड और सी दोनों को देख सकते हैं. अच्छा, सी में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है ना, तो यू कैन से दैट सी हैव यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर. ओके, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द सेकेंड पार्ट कि व्हाट इज द, हाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर shape the local and global weather. So now we are just going to discuss how atmospheric pressure shape the local weather. कैसे सेव करता है भाई? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंज लैंड एंड सी ब्रिजेज ओरिजिनेट. बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रिजेज, लैंड और सी जो है, लैंड सी ब्रिजेज जो हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? लोकल वेदर की वजह से हो रहा है. तो अब जरा देखो भाई क्या है.
कह रहा है ड्यूरिंग द डे टाइम, यहीं पे बता दो, जैसे मान लो ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये वाटर बॉडी बना दिया, ठीक, और ये लैंड बॉडी, तो हम कह रहे हैं ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड हीट अप फास्टर, सो इट डेवलप्स लो प्रेशर एंड वाटर डेवलप्स हाई प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, इट इज़ कॉल्ड सी ब्रिज। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, सेकेंड फिगर बना दो यहीं पे, फिगर से ही करना है, जितना ज़्यादा पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होगा इट विल अट्रैक्ट द मोर मार्क्स। तो जैसे मान लो यहाँ पर फिर हमने बनाया कि भाई ये जो है ये नाइट टाइम है, लैंड इज फास्टर हीट अप एंड फास्टर कूल्ड अप, इट डेवलप्स हाई प्रेशर और इट डेवलप्स लो प्रेशर। तो विंड्स आर मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी, तो लैंड एंड सी ब्रिज भी हो गया। ये और क्या करता है भाई लोकल वेदर में, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। भाई अगर मान लो कहीं पर लो प्रेशर है, मतलब साइक्लोनिक कंडीशन बना है, इट गिव्स रेनफॉल, और कहीं पर हाई प्रेशर इट मीन्स एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हैज़ बिन क्रिएटेड, देर इज़ अ नो फॉर्मेशन ऑफ, देर इज़ अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल। अब कह रहा रेनफॉल इट ऑल्सो इम्पैक्ट द इंसुलेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अगर मान लो कहीं पर लो प्रेशर बना है तो वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, अगर क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो इट विल इम्पैक्ट एंड हैम्पर द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द स्टॉर्म, अगर कहीं पर लो प्रेशर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है तो लाइटनिंग, थंडरिंग, स्टॉर्म्स, इस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द थर्मल और डिटरमाइन दी थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन का जो इंसिडेंट है इन माउंटेन एंड वैली ब्रिज को भी कंट्रोल कर रहा है, माउंटेन एंड वैली ब्रिज। तो ये भी देखना है। माउंटेन एंड वैली ब्रिज क्या है, जरा सा एक मिनट में यहीं पे समझ लेते हैं कि सपोज दैट दिस इज द माउंटेन एंड दिस इज द वैली, ठीक। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट विल हैपन, द स्लोप ऑफ माउंटेन रिसीव्स मोर इंसुलेशन, ये स्लोप ऑफ माउंटेन मोर इंसुलेशन रिसीव कर रहा है, तो इट मीन्स इट डेवलप्स लो प्रेशर, ठीक। और कह रहा है वैली क्या है, इट डेंसर है और इट डेवलप, वैली में इंसुलेशन भी नहीं आ रहा है डे के टाइम पे, तो कह रहा है इट डेवलप्स हाई प्रेशर, ठीक। एंड दैट इज वाई द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम वैली टू स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड दैट इज कॉल्ड वैली ब्रिज। और नाइट के टाइम पे क्या होगा, द कंडीशन हैज़ बिन रिवर्स्ड, क्या हो रहा है, कंडीशन रिवर्स्ड हो जा रहा है। तो ये जल्दी से हीटअप हुआ था, तो कह रहा है स्लोप ऑफ माउंटेन्स आर हीट अप फास्टर, सो इट रिड्यूस or release energy faster, so it develops high pressure, and here there is a development of low pressure. The winds are moving from mountainous slope to the valley and it is called mountain bridge. और इसी की वजह से क्या होता है, फॉग का फॉर्मेशन होता है माउंटेन एंड वैली ब्रिज में। चूँकि ये हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन पुट अप इन योर आंसर, सो वी कैन नॉट गो इनटू डीप इन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक, बिकॉज इट्स नॉट आर पर्पज, हमारा पर्पज ये नहीं है। अब कह रहा है कि हाउ इट सेव्स द ग्लोबल वेदर। तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ग्लोबल वेदर, ग्लोबल वेदर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ग्लोबल वेदर, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इट कंट्रोल्स, इट रेगुलेट्स और डिटरमाइन दी विंड पैटर्न। ग्लोबल विंड पैटर्न को ये क्या है, डिटरमाइन करता है, ग्लोबल विंड पैटर्न को। तो जरा सा जस्ट, अब जब बहुत ज़्यादा तो लिख तो नहीं सकते यहाँ पे, जल्दी से एक फिगर बना करके एग्जामिनर को बता देंगे। दिस इज़ 30 डिग्री नॉर्थ, दिस इज़ 60 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज़ 90 डिग्री, ठीक। तो क्या है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड का डायरेक्शन है, आप बता देंगे एग्जामिनर को। ऐसे यहाँ भी बता सकते हैं 30 डिग्री साउथ, this is called 60 degree south and this is 90 degree south. This is the direction of westerlies, so it controls by pressure belt and this is the direction of polar easterlies, ठीक। फिर यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि this is the direction of, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर है, तो this is the direction of south trade
विंड साउथ ईस्टर्ली, और ये क्या है, साउथ वेस्टर्ली का डायरेक्शन है, ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड पोलर ईस्टर्लीज। तो ये विंड पैटर्न को, ग्लोबल विंड पैटर्न को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप बता सकते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रेड विंड, इट इज अ जोन ऑफ ट्रेड विंड, दिस इज द जोन ऑफ वेस्टर्लीज, दिस इज द जोन ऑफ ईस्टर्लीज, इज इट ओके। तो ये सारी चीजें होंगी। और क्या बता सकते हैं, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ मॉनसून। मानसून का बिहेवियर कैसे कंट्रोल करता है भाई, तो हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो ये इंडिया है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लुक एट दी मैप। ड्यूरिंग द समर सीजन व्हाट विल हैपन, द लैंड बॉडी हीट अप फास्टर, सो इट डेवलप्स लो प्रेशर, एंड वाटर बॉडी डेवलप्स हाई प्रेशर, सो विंड्स आर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो देखो कैसे ये मानसून को भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कंट्रोल्स इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव को भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स एंड इन्फ्लुएंस द एल नीनो एंड ला नीना पैटर्न, ला नीना पैटर्न। तो एल नीनो एंड ला नीना पैटर्न को भी कंट्रोल करता है। एल नीनो ला नीना क्या है, जरा सा 1 मिनट में यहाँ पे मैप के ही थ्रू समझ सकते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट इनफ टाइम ड्यूरिंग द मीन्स, इतना टाइम भी नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओ। तो क्या करना है, लिखने की जगह पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। तो एल नीनो के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू कि हाउ यू कैन मैक्सिमाइज एंड ऑप्टिमाइज योर टाइम, ठीक। तो जैसे हमने ये एक स्ट्रक्चर ले लिया साउथ अमेरिका का, एंड हियर जस्ट वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और हम एल नीनो ईयर दिखा रहे हैं वेयर द trade winds are weaker, where the trade winds are weaker. When you can see that the southern trade winds are weaker, they are unable to, southern trade winds are weaker, when the southern trade winds are weaker, they are unable to drive the warmer water away from the Peruvian coast. So here there is a pilation of warmer water, तो वार्मर वाटर का पाइलेशन होगा तो इट डेवलप्स लो प्रेशर, और यहाँ डेवलप हो गया हाई प्रेशर। सो यहाँ हाई प्रेशर, तो ये लो प्रेशर है तो इसके ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। यहाँ हाई प्रेशर तो इसके ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर, एंड देयर इज अ रिवर्सल ऑफ हाई टू लो। देखो एक क्या हो गया, रिवर्स वॉकर सेल मूव करने लगा, फिर ये ऐसे। तो ये ग्लोबल विंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अच्छा, और क्या है, और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं इन दिस आंसर, और क्या इस आंसर में हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम लोग। ओके, एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि इट ऑल्सो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ओशन करेंट्स। ओशन करंट के डायरेक्शन को भी डिफाइन करता है, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द कोस्टल क्लाइमेट्स, ठीक। कोस्टल क्लाइमेट, तो कोस्टल क्लाइमेट को भी ये क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे, ओशन करेंट्स, व्हेन द any warm ocean currents passing over any coastal region, it will rise the temperature of that area, and the possibility of condensation, possibility of evaporation, and the possibility of rainfall is increasing. When the warm ocean currents are cold ocean currents are moving in any coastal area, it will reduce the temperature, it will reduce the precipitational rate, and the amount of rainfall, the possibility of amount of rainfall is goes on decreasing। ये कर सकते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक। अब इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ डायनेमिक phenomena. Atmospheric pressure is a dynamic phenomena which
controls by various factors, which controls by various factors, as well as it impacts all the weather phenomena and climatic phenomena over the world. So atmospheric pressure is playing crucial role in shaping the coastal, local, as well as global pattern of weather. ठीक, तो ये आपका एक तरीके से ये कंक्लूजन हो गया। इसमें बहुत सारा सिनॉप्सिस और पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया। तो इससे क्या पता चला कि हमें भाई पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा करना है। पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जितना ज़्यादा होगा उतना मार्क गेनिंग होगा, अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक, बाकी बातें हम लोग करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।